मैं अब देख रही हूँ बारह बजे ठीक है शाम को तुम्हें किसने पहना है? कोई आदमी था। तुमने उसे उतारा क्यों नहीं? मुझे लगा मुझे इसकी इजाजत नहीं है। अच्छा। हाँ तो मैं कह रहा था दिस इज इंस्पेक्टर एरियल एंड आई एम डिटेक्टिव पुल्स्की। सर, सबसे पहले तो आई रिस्पेक्ट यू एंड द वर्क दैट यू डू एंड आई एम रेडी टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ। कौन लोग? वो लोग जो पुलिस और उसके काम की इज्जत नहीं करते। मैं ना तो कभी इन चक्करों में पड़ा हूँ और ना ही कभी पढ़ना चाहूँगा। That's good to hear. तो तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या करते हो? मैं तो आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो हम तुम्हारे दोस्त हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था हम दोस्त नहीं तो दुश्मन भी तो नहीं। हम अपने दोस्तों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। हम अपने दोस्तों को नकाब में डालकर मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे सवालों का जवाब देगा कि नहीं। सवाल ये है हमें तुझे कितना मार मार कर। आपको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सभी सवालों का सच सच जवाब दूंगा। That's the stuff. फिर से Mr. Couturier, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या करते हो? मैं तब से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे बस इतना याद है कि जवाब मुझे याद आए तो आप मेरी कहानियों को भी याद आए और वो यहाँ पर अच्छा, तुम हमारी फाइल्स पढ़ रहे हो नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। और तुम्हें लगता है तुम्हें यहाँ तुम्हारी कहानियों के कारण लाया गया है। लेकिन एक बात बताओ, कहानियाँ लिखना कोई जुर्म तो नहीं? हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। कुछ रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखो। Exactly. Not even restrictions. I should call them guidelines. Yes. Guideline, yes. Guidelines. You can write any story you want if you follow those guidelines. Exactly. That's the whole point. I mean, if you're a storyteller, then tell stories. You're no politician, so don't go around making political statements. And if you've got a political axe to grind, then go fucking write an essay. A great man once said, the first duty of a storyteller is to tell a story. And I believe in that wholeheartedly. The first duty of a storyteller is to tell a story. No axe to grind, no anything to grind, no social anything whatsoever. And if you think there's something political in my stories, then just show us it. मुझे फॉर्म भर। अगर तुम्हें यहाँ कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। I hope you understand. Your name? Katurian. Surname? Katurian. Name is Katurian. My parents were funny people. More like retarded, just like your brother. He's not retarded. He's just slow. Place of birth? The Kamini slaughterhouse. Ah, there's a writer cutting up animals. I don't cut animals. I just clear stuff. Oh, so you're telling us you just clear stuff. Yes. So you're telling us you don't cut it, you clear it. Yes. पर ये तो Listen. पढ़ लो। इसे छोड़ो। हमारी कहानियों पे आते हैं। हमारी एक कहानी है, Little Apple. In the story, the father treats the little girl badly. Does the father represent something? nothing in particular. He's just a bad father. He's a bad father. And what else does he do to that little girl? The story says that he treats her badly, and we are allowed to draw our own conclusions. Oh, so we can draw our own conclusions. Yes. So you're telling us we can draw our own conclusions. No. Yes. I know I can fucking draw my own conclusions. I know. एरी, इसे मैंने तुम्हें बताया क्या? I am the good cop, he is the bad cop. So
तुम्हारी स्टोरी पे वापस आ. In the story, the father treats the little girl badly. So one day the girl gets some apples and carves some little men out of these apples. All little fingers, little eyes, little toes. And she gives them to her father. But she says, they're not to be eaten. They're to be kept as a memento of when his only little daughter was young. But naturally, the pig of her father swallows a whole bunch of these apple men just to torment. And they have razor blades inside them. The father dies in agony. But then it goes on. The girl wakes up that night, a number of apple men walking up her chest, they hold her mouth up and they say to her, You killed our little brothers. she chokes to death on her own blood at the end. It's a bit of a twist. You think it's a dream sequence, but it isn't. मैंने कहा था ज़्यादा खास नहीं है. तुम्हारा भाई स्कूल जाता है ना, हाँ, लेकिन वो तुमसे बड़ा नहीं. वो स्पेशल स्कूल जाता है. इससे याद है, मैं उससे जरा बात करके आता हूँ। पर मेरा भाई तो स्कूल में होगा. नहीं, बगल वाले कमरे में. मेरा भाई यहाँ है, पर वो तो स्कूल में था. वो डरा हुआ होगा. किस बात से? वो अनजान लोगों से बहुत जल्दी डर जाता है. और तुम्हारा आदमी वहां जाकर उसे मारने वाला है. मुझे उससे मिलना ही होगा. तुम्हें कुछ करना चाहिए. मैं कहता हूँ अभी के अभी जाओ और उसे बोलो. हो गया? तुम्हें क्या लगता है ये खेल है? क्यों मुझे गुस्सा आ गया, मैंने पुलिस वाले पे चिल्ला दिया, लेकिन मुझे पुलिस वाले पे नहीं चिल्लाना चाहिए. बैठो. पर मेरा भाई. कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को, मैं अपनी जबान देता हूँ. हमारी एक और कहानी है, 3 गिबेट क्रॉसरोड्स. तुम्हारा थीम नहीं है. कैसा थी? वही छोटे बच्चों को मारने वाला. मेरा ऐसा कोई थीम नहीं है. क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं लोगों को बोलता हूँ जाओ और छोटे बच्चों को मारो? ऐसा कहना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ. मैं बस कहानियां लिखता हूँ. और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हाँ मैं हाँ बस पता है वो. हमारी कहानी. Man wakes up in the iron gibbet he's been left to starve to death in. He knows he was guilty of the crime they put him in there for, but for some reason he cannot remember what it was. Across the crossroads from him, there are 2 other gibbets. There's a placard outside one that reads rapist, and there's a placard outside the other that reads murderer. There's a dusty skeleton inside the rapist's cage, and there's a dying old man inside the murderer's cage. Our man can't read the placard outside his own cage, so he asks the old man to read it for him, to tell him what he's done. The old man looks at the placard, looks at the man and spits in his face. Some nuns come along. They say prayers over the dead rapist. They give food and water to the old murderer. But when they looked at our man's crime, the light drains from them and they ran away in tears. A highwayman comes along. He doesn't pay much attention to the dead rapist. He smashes the lock on the cage of the old murderer and sets him free. Then he looks at our man. The highwayman smiles slightly. Our man smiles back slightly. The highwayman raises his gun and shoots him in the head. And as our man is dying, he screams out, just tell me what I've done. The highwayman rides off without telling him what he's done. And the last word that our man ever says are, Will I go to hell? अच्छी कहानी है ना? हाँ मुझे तो अच्छी लगी. तो ये तुम्हारी बेस्ट कहानी है. होगी, बट मेरी फेवरेट तो द टेल ऑफ द टाउन ऑन द रिवर है. एक ही है जो पब्लिश हुई है. हाँ याद आया, ये वही है ना जिसमें एक छोटे बच्चे की उंगलियां काट दी जाती. कहानी में ऐसा होता है, बट इफ यू सी द कंटेक्स्ट. ऐसे छोड़ो, एक चीज देखना चाहोगे? कैसी चीज? रुको जरा. इसके अंदर क्या है? ये तो मेरे भाई की आवाज है. हाँ लगता तो वही है. क्या कर रहे हो तुम उसके साथ?
मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ यहाँ पे। तुमने वादा किया था। क्या कर रहे हो तुम उसके साथ? बताओ, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है? मैं एक डिटेक्टिव। मैं पूछता हूँ, क्या किया है तुमने मेरे भाई के साथ? देखो तो एरियल, मिस्टर कटोरे हमसे सवाल पूछ रहे हैं। ये पहले उससे पूछ रहे थे कि इस डब्बे में क्या है, और अब पूछ रहे हैं इनके भाई के साथ क्या। भाड़ में जाए डब्बा। बताओ तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है? बे चुप! अगर तेरे भाई को मार मार कर मेरे हाथों का ये हाल ना हुआ होता ना, तो तेरा भी मुंह तोड़ देता। शुक्र मना, तेरे हिस्से के मुक्के उसी ने खा लिए, वरना मेरा तो मन कर रहा था कुछ नुकीला सलून अरे बस उसके। एरियल, this would be classified as police brutality. मैं अपने भाई के साथ मिलना चाहता हूँ, अभी के अभी। तुमने वो तीसरी बच्ची के साथ क्या किया? कौन सी तीसरी बच्ची? बस तुम और तुम्हारा भाई है ना, या कोई और भी है? हाँ, हम दोनों ही हैं। छोड़ दो उसे, वो तो बस एक बच्चा है। नहीं, वो नहीं है। पता है कौन होते हैं बच्चे? एक बच्ची थी, एंड्रिया जोवाकोव, नाम सुना उसका? पेपर में पढ़ा था। पेपर में पढ़ा था। और वो कैसे मरी? पेपर में दिया नहीं था। पेपर में दिया नहीं था। एक और बच्चा था, एरन गोल्डबर्ग, उसका नाम सुना है? पेपर में पढ़ा था। ये भी पेपर में पढ़ा। कमाल, बहुत पेपर पढ़ रहे हो। लेकिन ये कैसे मरा? ये दिया था पेपर में? नहीं शायद। ऑफ कोर्स पेपर में दिया नहीं, क्योंकि पेपर में तो बहुत कुछ नहीं दिया। ये भी कि 3 दिन पहले एक गूंगी लड़की भी गायब हुई है। आज पेपर में कुछ आने वाला है। आज तो पेपर में बहुत कुछ आने वाला है। उस लड़की के बारे में? हाँ, उस लड़की के बयानों के, पुलिस द्वारा मार दिए गए गुनहगारों के। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं बच्चों की हत्याओं के बारे में लिखना बंद कर दूं? सुना तुमने टुपुल्स? इसे लगता है हमें इसके लिखने के ढंग से दिक्कत है। जैसे इसे और हमें तो ये पता ही नहीं कि इसके भाई ने मुझे क्या क्या बताया है। क्या कहा उसने? जैसे हमें, इसे और इसके वो पागल भाई को ये पता ही नहीं कि इस डिब्बे में क्या है। मैं नहीं जानता मेरे भाई ने आपसे क्या कहा है, और ना ही जानना चाहता हूँ इस डिब्बे में क्या है। पर एक बात जानता हूँ, मेरा भाई अनजान लोगों से बातें नहीं करता है। आपने जरूर उसके साथ जबरदस्ती की होगी। खोल इसे। मैं पहले अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। खोल इसे। मैंने कहा मैं पहले अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। खोल इसे। अरे ऐसा क्या है? खोलता हूँ। चल। पता चली? हाँ? क्या है? क्या है? तुम्हें पता नहीं है क्या है? नहीं। तुम्हारे घर से मिला है। तुम्हारा भाई सब कुछ कबूल कर चुका है, पर ये तुम्हें पता ही है उसका दिमाग कितना तेज चलता है। तो अच्छा होगा अगर तू भी सब कुछ कबूल कर दे, अभी के अभी। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जानना चाहता है वो बच्ची कैसे मरी? उसके गले से रेजर ब्लेड्स मिले, एप्पल्स में लिपटे। और वो लड़का कैसे मरा? पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी और पांचवी। और हाँ, वो लड़का उंगलियां कटने की वजह से नहीं, खून के ज्यादा बहाव की वजह से मरा था। मैं बस कहानियां लिखता हूँ। एरियल, जरा खिलाओ इसे। अच्छा आइडिया टुपोल्स्की। बता वो गूंगी लड़की क्या है? बता। एरियल, बस करो। नहीं खिलाओगे क्या? पागल मत करो, पुलिस एविडेंस है।
कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई नहीं, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करता हूँ। Well, here as we stand, 5:15, Monday the 4th, and along with the evidence found in your house, your brother, spastic or not, has under duress or not, has admitted enough about the killings for us to execute him. But as Ariel said, he's hardly the brains behind it. So we want you to confess too. You see, we like executing writers like you, dimwits we can find any day. When we kill a writer like you, it sends out a signal. Don't go around killing little fucking kids! Detective Tobolsky, I've had enough of your bullshit and I want to tell you a couple of things. मैं जानता हूँ मेरे भाई ने आपसे कुछ नहीं कहा है और आप मुझे फंसाना चाहते हैं क्योंकि शायद आपको मेरी राइटिंग से दिक्कत है या आपको रिटार्डेड लोग नहीं पसंद। मगर जब तक मुझे मेरा भाई नहीं बन जाता है मैं एक और शब्द नहीं बोलूंगा। So torture me all you want, Detective Tobolsky, because I ain't saying no fucking word. एक समय की बात है, एक लड़का था जिसके मम्मी पापा उसे बेहद प्यार करते थे। जंगल के बीच एक बड़े से घर में उसका एक छोटा सा कमरा था। उसके पास वो सब कुछ था जो दुनिया का हर एक बच्चा चाहता है। ढेर सारे टॉयज, पेंट्स, बुक्स, पेन, सब कुछ। और इन सब में उसका पहला प्यार बना राइटिंग। शॉर्ट स्टोरीज, फेरी टेल्स, नॉवेल्स, वो सब जिनमें सब कुछ रंगीन और रोमांचक हुआ करता था। वो बहुत सी कहानियां लिखता, उसकी कुछ कहानियां अच्छी होती तो कुछ कहानियां बहुत ही अच्छी। उसके पेरेंट्स का एक्सपेरिमेंट सफल रहा, या यूं कहूं उसके पेरेंट्स के एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पार्ट सफल रहा। उसके 7वें बर्थडे की बात है जब वह डरावना सपना शुरू हुआ। रात भर उसे ड्रिल्स, कटर्स और किसी बच्चे की दबी हुई चीखों की आवाजें आने लगी। वो जब भी अपनी माँ से पूछता, मम्मी मम्मी क्या हुआ बेटा? वो सारी आवाजें कैसी हैं? कौन सी आवाज? ये तुम्हारे दिमाग में है। शायद तुम अपनी अगली कहानी के बारे में सोचोगे। वो बच्चा लिखता रहा और उसके पेरेंट्स खुशी खुशी उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते गए। उसकी कहानियां बेहतर हो रही थी, मगर उन डरावनी आवाजों के साथ वो और भी भयानक होती जा रही थी। उसके 14वें बर्थडे पर जब वो अपने एक स्टोरी कंपटीशन के रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, उसके कमरे में दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी आती है। उस चिट्ठी पर लिखा होता है, पिछले 7 सालों से उन्होंने तुम्हें प्यार किया और मुझे टॉर्चर, केवल एक एक्सपेरिमेंट के खातिर, और शायद वो सफल भी हो गया। तुम अब लिटिल ग्रीन पिग्स जैसी कहानियां नहीं लिखते ना? लिखते हो क्या? तुम्हारा भाई। हैरानी की बात तो यह है कि वह चिट्ठी खून से लिखी हुई थी। वो तुरंत दरवाजा तोड़ उस कमरे में जाता है और देखता है कि वहां तो केवल उसके माँ बाप हैं। उसके पापा ड्रिल से कुछ आवाजें निकाल रहे हैं और उसकी माँ किसी बच्चे की दबी हुई चीखों की आवाजें। वो उसे देखकर मुस्कुराते हैं और उसे चिट्ठी पलटने को बोलते हैं। पलटकर वो पाता है कि वो तो स्टोरी कंपटीशन जीत चुका है, और इसी के साथ उसके पेरेंट्स के एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट भी खत्म हुआ। कुछ दिनों बाद वो घर बदल लेते हैं। अब वो चीखें तो बंद हो गई थी, मगर कटूरियन की कहानियां अभी भी उतनी ही भयानक थी। आगे चलकर वो एक बड़ा राइटर बनता है, और जब उसकी पहली बुक पब्लिश होती है तो वो अपने पुराने घर वापस जाने का फैसला करता है। अपने पुराने घर में वही पुराने टॉयज, वही बुक्स देखकर वो खुश हो जाता है, मानो पुरानी यादें ताजा हो गई हो। तभी उसकी नजर बगल वाले कमरे में पड़े टॉर्चर के सामान पर पड़ती है। वो उस कमरे में घुसता है और देखता है कि वहां एक 14 साल के लड़के की लाश पड़ी है, जो सड़ चुकी है, जिसका केवल अब कंकाल बाकी है, और उसके हाथ में खून से सने कुछ पन्ने हैं जिन पर एक कहानी लिखी है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कोई ऐसा ही लिख सकता है जिसने कटूरियन से भी ज्यादा दर्द झेला हो।
एक इतनी खूबसूरत कहानी जो ना तो उसने पहले कभी पढ़ी थी और ना ही वो पहले लिख पाता, इसलिए वो उसे जला देता है। वो उसे जलाकर अपने भाई की लाश को छुपा देता है और इस किस्से का जिक्र किसी से नहीं करता है। इसी के साथ उसके पेरेंट्स के एक्सपेरिमेंट का फाइनल पार्ट खत्म। कटूरियन की कहानी राइटर एंड राइटर्स ब्रदर यहीं खत्म हो जाती है, पर सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई कुछ यूं थी कि जब वह 14 साल का लड़का दरवाजा तोड़ उस कमरे में जाता है तो वो वहां अपने भाई को पाता है जिंदा, पर उसके शरीर की एक ऐसी हड्डी ना थी जो टूटी ना हो, जो जली ना हो, और उसका दिमाग तो कहीं और ही घर बना बैठा था। उस रात वो 14 साल का लड़का अपने बर्थडे के दिन जब उसके मम्मी पापा सो गए होते हैं, पहले अपने पिता के चेहरे पर तकिया रखता है और फिर Once upon a time, a long, long way away, there was a little green pig who was green. Ah! Once upon a time, a long, long way away, there was a little green pig, and wait, was it a long, long way away? Yes, it was a long, long way away, and he was a little green pig, and then the little green pig, he said to the man, hello man. चुप हो जाओ कटूरियन, तुम्हारे कारण मैं स्टोरी नहीं सोच पा रहा हूँ। सोचो। Little green pig, man said, आग छोड़ो, वैसे भी मैं तुम्हारी ऐसी कहानी नहीं लिख पाऊंगा। काश वो तुम्हें जल्दी छोड़ दे, मैं बोर हो रहा हूँ, इतना बोरिंग है यहाँ पे। मैं खाना खाने जा रहा हूँ। I'll get back to you. हाय कटूरियन। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या लगता है मैं अपने भाई का सहारा ले रहा हूँ। कैसे हो? परफेक्ट, बस थोड़ा बोर हो रहा था। तुम चिल्ला रहे थे, दर्द हो रहा था क्या? दर्द नहीं होता तो टॉर्चर थोड़ी ना बोलते हैं। सही बात है। तुम्हें नहीं हुआ क्या? दर्द टॉर्चर होते समय? मेरा कब टॉर्चर हुआ? क्या? पर तुम चिल्ला रहे थे। अच्छा वो तो उसने मुझे चिल्लाने को कहा तो मैंने चिल्ला दिया। उसने मेरी तारीफ भी करी। तो उसने कहा और तुमने कर दिया। हाँ, माइकल कसम खाओ तुमने उन बच्चों को कुछ नहीं किया है। मैं कसम खाता हूँ। मतलब उनके पास हमारे खिलाफ सिर्फ तुम्हारा बयान और कुछ चीजें हैं जो हमारे घर से मिली थी। चीजें? हाँ, एक डब्बा था जिसमें कुछ उंगलियां थी। वैसे वो उंगलियां नहीं थी। शिट, जब एरियल वहां आया तो उसके हाथ में खून था, पर उसने तुम्हें छुआ तक नहीं। नहीं, उसने तो मुझे सैंडविच दिया
मगर उसमें टमाटर था। वेट लेट मी थिंक। ये बिल्कुल कहानी लिखने जैसा है। कोई आदमी तुम्हारे घर आता है और तुमसे कहता है तुम्हारी माँ मर गई, क्या तुम उसकी बात का विश्वास करोगे? हाँ, मेरी माँ तो मर गई है ना। हाँ, पर क्या वो कहानी में मरी है? हम बस इतना जानते हैं कि उस आदमी ने हमसे ये कहा है, फर्स्ट रूल ऑफ स्टोरी टेलिंग, नेवर बिलीव एवरीथिंग यू रीड इन द पेपर्स। ओह शिट, हम उनकी सारी बातों का विश्वास क्यों कर रहे थे? वो हमें फंसाना चाहते हैं। तुमने कुछ साइन तो नहीं किया ना? नहीं। माइकल, कुछ भी हो जाए, कुछ भी साइन मत करना। ठीक है। वैसे कटोरियन, मेरे वहाँ खुजली हो रही है, तुम्हारे पास पाउडर है? नहीं माइकल, यहाँ नहीं है। ठीक है। वैसे हम थोड़ी देर तक घर तो नहीं जा रहे ना? एक काम करो ना, मुझे कहानी सुनाओ, क्या पता उससे मेरा ध्यान भटक जाए। अगर ना सुनाओ तो? सुनाओ ना। अच्छा बाबा ठीक है, बताओ कौन सी कहानी सुनाओ? द लिटिल ग्रीन पिग। नहीं, वो तो बहुत बचकानी है। वो मेरी फेवरेट है। कोई और बताओ। द पिलो मैन। पिलोमैन, कैसे थी वो? अच्छा हाँ, तो सुनो। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा आदमी हुआ करता था, 9 फीट लंबा और पूरा पिलोस का बना। उसके हैंड्स, लेग्स, फिंगर्स सब कुछ पिलोस के बने थे। उसके चेहरे पे 2 बटन जैसी आंखें और एक बड़ी सी स्माइल थी। उसका ऐसा सॉफ्ट सा, सेफ सा होना जरूरी भी था, क्योंकि उसका काम बहुत ही डिफिकल्ट सा था। जब भी उसे कोई ऐसा आदमी दिखता जो बहुत सैड होता, अपनी लाइफ से परेशान होता और बस अपनी लाइफ खत्म करने वाला होता, तो पिलोमैन उसके पास जाता, उसके साथ बैठता और उससे प्यार से कहता, रुक जाओ थोड़ी देर। और वक्त मानो जैसे रुक सा जाता, बल्कि उल्टा चलने लगता। फिर वो दोनों उसकी दुख भरी जिंदगी से गुजरते हुए उसके बचपन तक पहुंच जाते, जब वह बच्चा खुश हुआ करता था। पर पिलोमैन का काम इतना सैड और इतना डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि उसका काम था उन बच्चों को अपनी जान देने के लिए कन्विंस करना, ताकि वो इतने सालों के दर्द से बच सके। अब तुम कहोगे कि तुमने तो किसी बच्चे को अपनी जान लेते हुए नहीं सुना है। हाँ, क्योंकि पिलोमैन उन्हें ऐसे तरीके बताता था जिससे उनकी डेथ एक एक्सीडेंट लगे। उन्हें पेन किलर स्वीट बताकर खिलाना, उन्हें काइट्स के पीछे दौड़ने को कहना। खैर, वो जानता था सभी के मम्मी पापा के लिए इस सच्चाई का सामना करना ज्यादा आसान होगा कि उनका बच्चा एक एक्सीडेंट में गुजर गया, ना कि उसने जिंदगी का सारा दुख देख लिया और अपनी जान देने पर उतर आया। मगर हर बच्चा पिलोमैन की कटोरियन, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे एंड बताओ। अच्छा बाबा ठीक है, तो सुनो। जब भी पिलोमैन अपने काम में सक्सेसफुल होता, कोई बच्चा एक दर्दनाक एक्सीडेंट में मर जाता, और जब भी वो अपने काम में अनसक्सेसफुल होता, वो बच्चा एक दुख भरी जिंदगी जीता और फिर अपनी जान दे देता। पिलोमैन ये सब जानता था और सबसे छुपकर अकेले में खूब रोया करता था। तो उसने एक दिन फैसला किया, एक आखिरी काम करने का फैसला, और अपने हाथ में पेट्रोल का कैन लिए वो एक बड़े से विलो ट्री के नीचे गया और उसकी छांव में बैठ गया। तभी उसे एक बच्चे की आवाज आती है जो अपनी माँ से कह रहा होता है, मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है, जल्दी आना नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। पिलोमैन उस बच्चे की तरफ मुड़ता है और देखता है कि वो तो कोई और नहीं बल्कि पिलो बॉय है, जो दौड़े दौड़े उस पिलोमैन की तरफ आ रहा है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार से मिलते हैं और हेलो बोलते हैं और आपस में खेलने लगते हैं। खेलते हुए पिलोमैन पिलो बॉय को अपने काम के बारे में सब कुछ बताता है, उन सभी बच्चों के बारे में भी जिन्हें अपनी जान देनी पड़ी। माइकल, पिलो बॉय बहुत ही शांत और खुशमिजाज स्वभाव का लड़का था, जिसे दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था।
ये सब सुनते ही वो तुरंत सब कुछ समझ गया। उसने फिलोमेन के हाथ से वो पेट्रोल का कैन लिया और अपने ऊपर डाल लिया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम मेरी मम्मी से कह दोगे मैं चाय पीने नहीं आ पाऊंगा? फिलोमेन के गायब होते शरीर ने जो आखिरी चीज देखी वो थी उस जलते हुए पिलो बॉय की मुस्कुराहट। और जो आखिरी चीज उसने सुनी वो थी उन हजारों बच्चों की चीखें जिन्हें अब वो बचा नहीं पाएगा। मतलब फिलोमेन गायब हो गया? जैसे कि वो कभी था ही नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया। क्या फिलोमेन? नहीं वो नहीं, मुझे लगा मैंने अच्छे से छुपाया था। क्या छुपाया था? वो डब्बा जिसमें उंगलियां थी, अच्छे से छुपाया था। देखो, पहले मैंने उसे सूटकेस में डाला, फिर उस सूटकेस को बेसमेंट में छुपा दिया। तुमने देखे थे ना, क्या वो उंगलियां सड़ गई थी? तुमने कहा था तुमने उन बच्चों को छुआ तक नहीं। तुमने वादा किया था। सॉरी कटूरियन, मैं जानता था वो गलत है, लेकिन बहुत मजेदार था। वो बच्चा बिल्कुल वैसे ही था जैसे तुमने अपनी कहानी में बताया था। उंगली काटने के बाद भी बिल्कुल नहीं डरा। लेकिन वो लड़की बहुत शैतान थी, खा ही नहीं रही थी। कितने मुश्किल से बनाए थे मैंने वो एप्पल मैन। और तुमने तो ये भी नहीं बताया कि उसको पेट कैसे डालते हैं। बहुत जबरदस्ती खिलाना पड़ा उसे, लेकिन आखिर में वो शांत हो ही गई। वैसे कटोरियन, ये कपड़े से खून साफ करना कितना मुश्किल है ना? तुम कल जान जाओगे। क्या मैं धो दूं? अब मुझे अच्छे से आ गया है। तुमने ऐसा क्यों किया? रो मत कटोरियन। तुमने ऐसा क्यों किया माइकल? तुमने ही तो कहा था मुझे। मैंने? हाँ, तुमने ही तो कहा था। मुझे याद नहीं तुमसे ये कहते हुए कि जाओ और छोटे बच्चों को मारो, उनके टुकड़े करो। टुकड़े? नहीं, मैंने तो बहुत प्यार से काटा था, बिल्कुल ऐसे। और वैसे भी अगर तुम कहानी में नहीं बोलते तो मैं नहीं करता। खुद को बेकसूर मत कहो। देखो कटोरियन, तुम्हारी कहानी में किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। तो मैं तो बस इतना ही जानना चाहता था कि क्या असल जिंदगी में भी सबके साथ बुरा ही होता है। मगर फिर तुमने कोई अच्छी कहानी ऐड क्यों नहीं की? क्योंकि तुमने कोई अच्छी कहानी लिखी ही नहीं। मैंने काफी अच्छी कहानियां लिखी थी। नहीं, होगी बस 1-2। नहीं, मैं बताता हूँ तुमने कभी कोई अच्छी कहानी ऐड क्यों नहीं की। क्योंकि तुम एक सेडिस्ट हो जिसे बच्चों को मारना पसंद है। अगर मैंने दुनिया की सबसे प्यारी चीज भी लिखी होती तब भी तुम यही करते। देखो, इन बातों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुमने कभी कोई अच्छी कहानी लिखी नहीं थी। वैसे वो एजेंट भी मेरी बात से एग्री करता था। किस बात से? यही कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे कहानी के कारण किया। पर ये गलत है। क्या वो कहानी तुमने नहीं लिखी थी? हाँ, पर बस फिर बहाने मत बनाओ। वैसे देखा जाए, जो तुमने मुझे अभी कहानी बताई थी, उसमें फिलोमेन भी तो बच्चों को मारता है और वो हीरो भी है। कितना अच्छा आदमी है ना वो, बिल्कुल मुझे मेरी याद दिलाता है। नहीं माइकल, फिलोमेन ने किसी को मारा नहीं था। और वो बच्चे वैसे ही एक दुभरी जिंदगी जीने ही वाले थे। हाँ, सारे बच्चे बड़े होकर दुभरी जिंदगी तो जीते हैं। सभी बच्चों की जिंदगी इतनी खराब नहीं होती है। तुम्हारी नहीं थी, मेरी नहीं थी। 2 out of 2। वो हम दोनों को मार देंगे, मेरी सारी कहानियां जला देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कटोरियन, मुझे लगता है कि तुम्हें उन कागजों से ज्यादा हमारी चिंता होनी चाहिए। क्या कहा? कागज? कागज? हाँ। अगर वो अभी आए और बोले हम 3 में से किन्हीं 2 को खत्म करेंगे, तो सबसे पहले मैं उन्हें तुम्हें मारने को बोलूंगा, फिर खुद को, और मेरी कहानियां होंगी जिन्हें मैं बचाऊंगा। तुमने मेरा सर पटका तो
तुम बिल्कुल मम्मी पापा के जैसे हो। मैं मम्मी पापा जैसा हूँ। हाँ, तुम भी मुझे मार रहे हो। मैं मम्मी पापा जैसा हूँ। जिन लोगों ने 7 साल तक तुम्हें टॉर्चर किया, मैं उन जैसा हूँ। और तुम जिसने बाकियों के साथ भी वैसा ही किया, तुम उन जैसा नहीं हो। नहीं। तुम बिल्कुल उन्हीं जैसे हो। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी कहानी एक्ट कर रहा था। झूठ। और तुमने उस तीसरी बच्ची के साथ क्या किया है? मैं नहीं बताऊंगा। जब वो डिटेक्टिव्स आकर तुम्हें टॉर्चर करेंगे तब तो बताओगे। मैं नहीं बताऊंगा, मैं सहलूंगा सब कुछ। नहीं सह पाओगे तुम। मैंने कहा ना मैं सहलूंगा। तुम नहीं जानते, तुम्हारे 1 घंटे टॉर्चर के बाद ये हाल है। लेकिन मैंने पूरी जिंदगी भर टॉर्चर सहा है, पूरी जिंदगी टॉर्चर। माइकल, माइकल प्लीज बता दो तुमने उन बच्चों के साथ क्या किया है। प्लीज माइकल। तुम गुस्सा आओगे। माइकल प्लीज, मैं बस जानना चाहता हूँ। वो वाली, द लिटिल जीसस। और तुमने उसे कहाँ गाड़ा? वही जहाँ तुमने मम्मी पापा को गाड़ा था, वो कुएं के पास। रो मत कटूरियन, सब ठीक हो जाएगा। कैसे कैसे ठीक हो जाएगा सब? ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, इस सिचुएशन में सब ऐसे ही बोलते हैं। वो आकर सब कुछ खत्म कर देंगे। क्या वो हम दोनों को मार देंगे? अगर वो हमें मारेंगे तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को साथ में मारे और साथ में गाड़े। फिर उसके बाद मरने के भी हम साथ साथ ही रहेंगे। हम दोनों साथ नहीं मरेंगे। मरने के बाद तुम वापस मम्मी पापा के पास जाओगे, जो तुम्हें फिर से दिन रात टॉर्चर करेंगे। और इस बार मैं नहीं होऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। कटूरिया, तुम कितने बुरे हो। मुझसे आज तक किसी ने इतनी बुरी बात नहीं बोली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जाओ। मैं तुम्हें कितना प्यार करता था। क्या कहा तुमने? क्या करता था? मैंने अभी तुमसे कहा कि तुमने मुझसे कितनी बुरी बात बोली है और फिर तुम ये बोलते हो। कट्टी। और हाँ, तुम्हारी वो कहानी राइटर एंड राइटर्स ब्रदर, वो तो बिल्कुल ही घटिया है। क्या लिखा था तुमने कि उसमें मम्मी पापा जिंदा रह जाते हैं और मैं मर जाता हूं। झूठ है ये। तुम मुझे हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं दे सकते थे जो सच है? अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि कहानियां कैसे लिखते हैं। असल जिंदगी में हैप्पी एंडिंग नहीं होती है माइकल। गलत, मेरे में तो है। उसमें तुम मम्मी पापा को मार देते हो और हम दोनों साथ साथ रहते हैं। और फिर तुमने उन बच्चों को मार दिया और पकड़े गए। और फिर तुम्हारा भाई जिसका कोई कसूर नहीं था, तुम उसे भी इसमें शामिल कर लेते हो। ये है तुम्हारी हैप्पी एंडिंग। मगर हम उसमें आखिर तक साथ साथ रहते हैं। उस कहानी में तुम मुझे छोड़ गए थे सड़ने के लिए। असल में तो वही थी हैप्पी एंडिंग। क्या कि तुम मुझे छोड़ गए थे सड़ने के लिए? कुछ भूल रहे हो। तुम्हारे हाथ में एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो मेरी सारी कहानियों से बेहतर थी। राइटर एंड राइटर्स ब्रदर। राइटर तुम थे माइकल। लेकिन मैं तो मर गया था ना। सवाल मरने या जीने का नहीं है, इंपॉर्टेंस उन चीजों की है जो तुम पीछे छोड़ते हो। मैं समझा नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता वो मेरे साथ क्या करते हैं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरी कहानियां हैं। और मैं तुम्हें लिटिल जीसस ही क्यों करनी थी? अब
अब जो हो गया सो हो गया। मैं सोने जा रहा हूँ। पर वो कभी भी आकर हमें मारने वाले हैं। इसलिए तो जब तक समय है सो जाओ। कटोरियन, हाँ, एक काम करो, मुझे ना कहानी सुनाओ, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। किस लिए? इसलिए तुमने मुझसे इतनी बुरी बातें बोली उसके लिए। अच्छा बताओ, कौन सी कहानी? द लिटिल ग्रीन पिग। कटोरियन, तुम अपनी सारी कहानियां द लिटिल ग्रीन पिग जैसी क्यों नहीं लिखते? कितनी अच्छी कहानी है वो। चलो छोड़ो, मुझे कहानी सुनाओ। एक समय की बात है, एक फार्म पर ढेर सारे पिग्स हुआ करते थे, मगर उनमें से एक छोटा सा पिग ग्रीन कलर का था। उसे बाकियों से अलग होना बहुत पसंद था, पर बाकी पिग्स इस बात से बहुत चिढ़ा करते थे। वो उसे खूब चिढ़ाया करते थे और इस शोर से सारे फार्मर्स भी बहुत परेशान थे। तो एक दिन उन सभी फार्मर्स ने उस छोटे से पिग को एक स्पेशल पिंक पेंट से कलर कर दिया। वो कलर इसलिए स्पेशल था क्योंकि ना तो उसे हटाया जा सकता था और ना ही किसी दूसरे कलर को उस पर चढ़ाया। वो पिग बहुत उदास हुआ और भगवान से रोते रोते बोला, भगवान, मैं अलग होने से खुश हूँ। मैं अलग होने से खुश हूँ। मुझे बाकियों की तरह मत बनाओ। तो भगवान ने उसकी बात सुन ली। उस रात जब फार्म पर सारे पिग सोए हुए थे, बहुत तेज बारिश होती है, मगर ये कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी। ये एक स्पेशल ग्रीन बारिश थी, जो बिल्कुल उस स्पेशल पिंक पेंट की तरह थी। ना तो इसे हटाया जा सकता था और ना ही किसी और कलर को इस पर चढ़ाया। सुबह होते ही सारे पिग्स जागते हैं और देखकर चौंक गए कि वो सब ग्रीन कलर से रंगे हुए हैं, सिवाय हमारे लिटिल ग्रीन पिग के, जो अब पिंक था। वो बहुत खुश होता है और भगवान को थैंक यू बोलता है कि उसे अभी भी बाकियों से अलग रखा। तुम्हें ये कहानी कितनी पसंद है ना? अच्छी कहानी है। ना तो इसमें कोई रेजर ब्लेड्स है, ना ही कटी हुई उंगलियां। शायद तुम्हें यही कहानी एक्ट करनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं मेरे भाई। स्वीट ड्रीम्स माइकल। Detective! I would like to make a confession! लड़की थी जो खुद को जीसस क्राइस्ट का दूसरा अवतार मानती थी। उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा रिलीजियस तो नहीं थे, मगर अपनी बेटी की खुशी पूरी करने में खुशी पाते थे। एक 6 साल की बच्ची के लिए ये थोड़ा अजीब तो था। वो बिल्कुल जीसस की तरह उन जगहों पर जाया करती जहां बेघर और नशे में पड़े लोग रहा करते थे, और हर बार उसके मम्मी पापा उसे वहां से बचा कर लाते, लेकिन वो घर आने पर काफी हंगामा करती। एक बार वो लड़की फिर गायब हुई और उसे ढूंढने निकले उसके मम्मी पापा की
कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जब उस लड़की को इस बात का पता चला तो उसकी आंखों से केवल एक आंसू निकला, क्योंकि उसे लगा अगर उसकी जगह जीसस होते तो वो भी यही करते। फिर उसे फॉस्टर होम भेज दिया गया, पर उसके फॉस्टर पेरेंट्स भगवान से नफरत करते थे और नशे में पड़े रहते थे। जब उन्हें उस लड़की के इस शौक का पता चला तो वो उससे भी नफरत करने लग गए। जब भी वो बोलती कि उसे चर्च जाना है तो उसकी सैंडल्स निकाल लेते और वो पूरे रास्ते नंगे पांव जाती। नुकीले पत्थरों के ऊपर चलकर उसके पैरों से खून निकलने लगता और चर्च के फ्लोर को खून से गंदा करने के कारण उसे चर्च से भी भगा दिया जाता। उसकी जिंदगी बस दर्द का सिलसिला बनकर रह गई थी। कभी उसे घर देर आने के लिए डांट पड़ती तो कभी अनजान लोगों को खाना बांटने के लिए, पर वो यह सब हंसते हंसते सहती रही। एक बार रास्ते में उसे एक अंधा भिखारी मिला और उसने अपना थूक मिट्टी में मिलाकर उसकी आंखों से रगड़ दिया, और जिस पर उसने पुलिस को खबर कर दी। उसके फॉस्टर पेरेंट्स ने उसे खूब डांटा और बोले, तुम जीसस बनना चाहती हो ना? उसके हाथ पे कहने पर उसकी माँ ने उसे कांटों का ताज पहनाया और उसके बाप ने बेरहमी से उसे चाबुक से मारा। फिर बिल्कुल जीसस की तरह उन्होंने उस लड़की में कीले ठोककर उसे क्रॉस से लटका दिया और वहीं छोड़ दिया। इन सब के बाद भी उसकी जिद पूरी नहीं हुई और वो बोलती है, मैं जीसस नहीं बनना चाहती क्योंकि मैं ही जीसस हूँ। उसके फॉस्टर पेरेंट्स और ज्यादा बौखला गए और उसे कफन में बंद करके जिंदा गाड़ दिया और बोले, अगर तुम जीसस हो तो 3 दिन में फिर से उठ जाओगी। वो लड़की चिल्लाती रही पर आखिरकार तड़पने लगी। शायद इस बार जीसस फिर से जिंदा नहीं होने वाले थे। I hereby confess to my part in the murders of 6 people, 3 carried out by me alone and 3 by myself and my brother. My most recent killing was that of my brother Michael. Stuff about how much he loves his brother. My most recent killing prior to that was of a little mute girl. I do not know her name. The girl was... जल्दी लिखो। ये तुम्हारा एग्जाम नहीं चल रहा है जो मुझसे छुपा रहे हो। I'm sorry. Killed as we acted out a story called The Little Jesus. Which one's the Little Jesus? तुमने पढ़ी है? हाँ, तुमने उसकी बॉडी कहाँ छोड़ी? मैंने ये मैप बनाया है। मेरे घर से करीब 200 मीटर दूर एक कुआं है। उस कुएं के पास ही 2 और लाशों के साथ। 2 और लाश? लिख रहा हूँ। एरियल, कहाँ तक पढ़ ली? वो बिल्कुल जीसस की तरह उन जगहों पर जाती जहाँ बेघर और नशे में एरियल, तुम्हें नहीं लगता अगर तुम कोई कहानी पढ़ रहे हो ये जानने के लिए कि बच्चे की मौत कैसे हुई, तुम्हें सीधा एंड का पार्ट पढ़ना चाहिए? जल्दी पढ़ो, मैं ये मैप फॉरेंसिक्स वालों को लेके आता हूँ। क्यों एग्जिस्ट करते हैं तुम्हारे जैसे लोग? As I held him down, I cut his little toes
As he held her down, he fed her little figures made from apples with razor blades inside them. तुम्हें सही में लगता है हम तुम्हारी कहानियां नहीं चलाएंगे? मैंने सब कुछ सही सही बयान दिया है, जैसा कि मैंने वादा किया था। और मुझे भरोसा है कि आप भी मेरी कहानियों को सेफ रखेंगे, जैसा कि आपने वादा किया था, ताकि वो अगले 50 साले! आप मुझे बाद में मार सकते हैं। मैं अभी लिख रहा था, मैंने अपने माँ बाप को कैसे मारा। थैंक यू। तुमने अपने माँ बाप को भी मारा है? हाँ, क्यों? मेरी एक कहानी है, राइटर एंड राइटर्स ब्रदर। इकलौती कहानी जो मेरी खुद की लाइफ से रिलेटेड है। आपने पढ़ी है? हाँ। कितने साल का था वो जब ये सब शुरू हुआ? वो 8 और मैं 7। कब तक चला ये? अगले 7 सालों तक। और तुम 7 साल तक सब सुनते रहे? ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था क्या चल रहा है, लेकिन हाँ। और फिर? और फिर मैंने अपने माँ और बाप के चेहरे पर तकिया रखा और उन्हें उस कुएं के पीछे काट दिया। पता है, तुम्हारी कहानी तुम्हें कोर्ट में बचा सकती है। मतलब थी, अगर अगले आधे घंटे में हम तुम्हें मार नहीं रहे होते। मुझे ऐसे भी कोई कोर्ट नहीं जाना है। मैं बस चाहता हूँ आप मेरी कहानियाँ सेव रखें। मुझे भरोसा है आप पर। मुझ पर? ऐसा क्यों? पता नहीं, बस कुछ है तुम्हारे बारे में। अच्छा, मैं बताता हूँ क्या है। नफरत तुम जैसे लोगों से और उन सब लोगों से जो मासूम बच्चों की जान लेते हैं। पता है, एक बात मुझे चैन से सोने नहीं देती है, मेरे कानों में आकर कहती है, ऐसे लोग बचने नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कैदियों को बहुत मारता भी हूं। हाँ, वो कभी कभी बेगुनाह भी होते हैं, पर पता है, उससे एक बात तय हो जाती है, यहां से निकलने के बाद वो कैदी जिंदा या मुर्दा किसी बच्चे पर उंगली तक नहीं उठाएगा। और वो जब भी ऐसा करने की सोचेगा भी ना, उसे मेरी याद आएगी। हाँ, मुझे पता है कि ये गलत है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना और मेरे आसपास बच्चे बेफिक्र होकर खुशी से खेल रहे होंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं एक अच्छा आदमी था। पूरी जिंदगी मैं एक ईमानदार ऑफिसर था। मैंने सच का साथ दिया, उन मासूम बच्चों का साथ दिया, ना कि तुम जैसे दरिंदों का जो आए दिन बच्चों को टॉर्चर करते हैं, वो भी लिटिल जीसस जैसी कहानियों को नाट करके। You know what? Fuck you and fuck your mom and dad. बाहर में जाए वो सब जो उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे उस भाई के साथ किया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें उन बच्चों को मारने के लिए माफ कर दूंगा? इधर आओ, घुटने पे बैठ, इधर आओ। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस काम। इधर आते हैं, मैं वहां हूं। छुपने के लिए तुम्हें पहले तुम्हारी माँ ने बोला था या तुम्हारे बाप ने?
एरियन, क्या तुमने इसे अपने बचपन के बारे में बताया? यू नो, प्रॉब्लम चाइल्डहुड। नहीं टुपोल्स्की, मैंने इसे अपने बचपन के बारे में कुछ नहीं बताया। और मेरे बचपन को प्रॉब्लम चाइल्डहुड बोलना बंद करो। तो क्या बोलते? फक बाय योर डैड चाइल्डहुड। सही रहे भाई। मैं थक गया हूं तुम्हारे जैसे लोगों से जो अपनी घटिया हरकतों का दोष अपने बुरे बचपन पे देते हैं। मेरा बाप भी गुस्सैल और नशेड़ी था, क्या मैं भी हूँ? हाँ हूँ तो, लेकिन वो मेरी पर्सनल चॉइस। मैं काम कर लूँ अपना। प्लीज गो ऑन। तुम्हारे डैड अब कहाँ है एरियन? जेल में? टुपोल्स्की, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखना। नहीं, जेल में नहीं है। तो फिर कहाँ है? मुझे अपना काम करने दे। पुलिस उसे कभी पकड़ ही नहीं पाई। क्यों? टुपोल्स्की, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा। क्यों? चुप कर। क्योंकि एरियन ने उसे पहले ही मार दिया। मतलब मर्डर तो नहीं था, सेल्फ डिफेंस ही था। और हाँ, मेरा बाप भी अगर 8 साल की उम्र से मेरे साथ ऐसा करता तो मैं तो उसे मारता। वैसे रुक जाओ, एरियन ने तुम्हें बताया इसने भी अपने बाप को तकिए से दबा के मारा था? एरियन, काफी कॉमन है तुम्हारे बीच। बस, बहुत हुआ तुम्हारा। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। तब से ये बकबक करे जा रहे हो अपना काम छोड़ के। मजाक लग रहा तुम्हें? मैं जा रहा हूं कमांडेंट के पास उन्हें सब कुछ बताने, और वापस आकर इससे भी सब सच उगलवाऊंगा। और कैसे करोगे तुम ये? जैसे मैं अभी कर रहा था, इसे टॉर्चर करके। यही तो फर्क है हम दोनों में। पता है मैं क्या करूंगा? मैं इससे पूछूंगा बहुत प्यार से, मिस्टर कटूरियन कटूरियन, क्या तुम्हें लगता है कि वो बच्ची जब तुमने उसे जिंदा गाड़ा था तो वुडन क्रॉस से कितने खून निकला हो? क्या ये सच है कि तुमने उसे जमीन में गाड़ा था? ये सब तो पता है हमें। रुक जाओ, तो गाड़ते समय वो लड़की जिंदा थी या मर चुकी? पता नहीं। पता नहीं? मैं पता नहीं। एरियल, फॉरेंसिक्स वालों को बोलो जल्दी करने। हो सकता है वो लड़की अभी भी जिंदा हो। हाँ, और तुम्हें पता कैसे नहीं है? पहचानना मुश्किल था। उसकी सांसें काफी धीमी हो गई थी, और अब तक तो वो मरी गई होगी, है ना? है ना? है ना? मुझे नहीं पता। मैंने कभी किसी छोटी बच्ची को टॉर्चर करके उसे जिंदा नहीं करा। तो पहले ही शक हो रहा था तुम्हारी बातों पर। वो मरी गई होगी। अभी तक वहां क्या कर रहे हो? जरा आप मेरी कहानियों को जला तो नहीं देंगे ना? क्या मैंने ऐसा कहा था? अगर हाँ तो नहीं जलाऊंगा। हाँ, मुझे मालूम था, और इसलिए मैं आपकी इज्जत भी करता हूँ। मुझे पता है आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर फिर भी। देखो तो कैसे खुल रहे हो। लेकिन कितनी अफसोस की बात है ना, मैं तुम्हें 10 मिनट में गोली मारने वाला हूँ। खैर, तुम्हारी वो सारी कहानियां बेकार नहीं है, कुछ अच्छी भी है उनमें। जैसे कपिलों में कुछ था उस कहानी में तो मुझे छू गया। कुछ बहुत नाजुक सा। वो बात कि जब कोई बच्चा किसी हादसे में गुजरता है तो वो अकेला नहीं होता उसके साथ कोई अपना उसका हाथ पकड़ने के लिए।
जो हुआ उसमें उस बच्चे की मर्जी थी, कोई हादसे का खेल नहीं। सच कहूं तो मदद भी करता है हमें मौत को अपनाने में। क्या आपका बच्चा? मैं हीरो की तरह ये सब बातें नहीं करता। अब क्या होगा? अब हम उस बच्ची के खबर के आने का इंतजार करेंगे, फिर तुम्हें नकाब पहनाएंगे, नीचे बैठाएंगे और गोली मार देंगे। मारने से पहले मुझे प्लीज 2 मिनट दे दीजिएगा। ठीक है, पर करोगे क्या तुम इन 2 मिनट का? अपने भाई के लिए दुआ मांगो। इन 3 बच्चों के लिए नहीं। नहीं, बस अपने भाई के लिए। क्या एरियल, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? एरियल, हाँ? क्या हुआ? मिली वो? हाँ मिली। जिंदा थी? हाँ वो जिंदा थी। कुएं के पास मिली। वहां 3 छोटे पिग्स भी थे। खाने पीने का भी पूरा इंतजाम था। काफी खुश थी ना तुम मारिया? अरे हाँ, की ये पूछ रही है क्या ये वो पिग्स अपने साथ रख सकती है? की हाँ हाँ, रख सकती है। चलो चलो, अब तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है, फिर तुम्हारे पेरेंट्स के पास। उन्हें बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। चलो। वहां कुएं के पास इसके माँ बाप का भी कब्र मिला, जैसा इसने हमसे कहा था। पर इसने हमसे 2 ऐसे मर्डर्स के बारे में बोला जिसका हमें कोई आइडिया ही नहीं था, और एक ऐसा मर्डर जो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन क्यों? क्यों? तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों? और तुम खुश क्यों नहीं लग रहे कि वो बच्ची जिंदा थी? तुमसे ज्यादा खुश तो ये लग रहा है मुझे। 1 मिनट, वो लड़की ग्रीन कलर से पेंटेड थी और पिस के साथ रखी हुई थी। इसका मतलब इसने The little green pig enact करी थी, पर इसने हमसे झूठा बयान क्यों दिया? हो सकता है इस कहानी में कोई सुराग हो। उसकी क्या जरूरत है? हम इसी से ही पूछ लेते हैं। मैंने कहा ना, मैं पढ़ रहा हूँ। बताओ। पता नहीं, पर मैं खुश हूँ कि वो बच्ची जिंदा है और ठीक है, सच में। हाँ हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम खुश हो, इससे तो ज्यादा ही खुश हो। पर अब मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, जवाब दोगे? देने ही पड़ेगा। तो जरा ये बताओ कि जिस बच्चे की तुमने पैर की उंगलियां काटी, उसके बालों का रंग क्या था? बालों का रंग, हेयर? ब्राउन ब्लैक, ऐसे ही ब्राउन उसका। ब्लैक। अच्छा गैस, पर अफसोस उसके बाल तो लाल थे। अब उस लड़की के बारे में पूछूं जिसे तुमने वो एप्पलमैन खिलाया? नहीं नहीं, क्योंकि तुमने उन्हें कभी मारा ही नहीं, नहीं बल्कि तुमने उन्हें देखा तक नहीं है। नहीं, अपने भाई को कहा था मारने को? मुझे इस बारे में आज ही पता चला। अपने माँ बाप को भी नहीं मारा था? उन्हें मैं नहीं मारा था। देखो कटूरियन, जो भी बोलो जरा सोच समझ कर बोलो। मेरे माँ बाप को मैं नहीं मारा था। ठीक है, किसी बच्चे को तो नहीं मारा था ना? ये रहा तुम्हारा गवाह टुपोल्स्की। Throughout Ariel, टुपोल्स्की, मैं अपने बस क्यूरियोसिटी के लिए तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, तुमने हमसे झूठी गवाही क्यों दी? क्योंकि माइकल के कत्ल के लिए आप मुझे वैसे ही पकड़ने वाले थे। जैसे ही आपको तीसरी बच्ची के बारे में पता चल जाता, आपको मेरे माँ बाप के कत्ल का भी पता चल जाता। तो मैंने सोचा अगर हर चीज़ का इल्ज़ाम मैं खुद पर ले लूँ तो कम से कम मेरी कहानियाँ बच जाएंगी। काफी शर्म की बात है तब तो। क्यों?
कि हम तुम्हारी ये सारी कहानियाँ इस शर्त पर बचाने वाले थे कि तुम हमें सब सच सच बताओगे। लेकिन क्योंकि तुमने हमसे झूठ बोला, हमारी जिंदगी की सारी मेहनत जलने वाली है। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? नकाब पहनो अपना। तुलसी क्या कर रहे हो तुम? एरियल प्लीज। एरियल, क्या ये सच नहीं कि आज ऑनरेबल मैन हमें अपना वादा पूरा करना चाहिए? हाँ। क्या ये सच नहीं कि इसने हमसे उन सारे बच्चों के बारे में झूठ कहा? हाँ। क्या ये सच नहीं कि हमारे पास पूरा हक है इसकी सारी कहानियां जलाने का? प्लीज एरियल, प्लीज। हाँ। देखो गटूरियन, मुझे पता है तुमने उन बच्चों को नहीं मारा। तुम अपने भाई को भी नहीं मारना चाहते थे। तुम्हारा अपने माँ बाप को मारना भी गलत नहीं था। लेकिन आई एम सॉरी। और सच कहूं तो मुझे तुम्हारी कहानी कभी पसंद ही नहीं थी। नकाब पहनो। बैठो नीचे। दे दो। 10 सेकंड है तुम्हारे पास। मौत के पहले उन 7.5 सेकंड्स में कटूरियन ने अपने भाई के लिए एक आखिरी कहानी सोचने की कोशिश की। माइकल, मैं यहाँ हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक कहानी लिखी है, सुनना चाहोगे? हाँ, सुनाओ। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही खुश और नेकदिल बच्चा था जिसका नाम था माइकल। ये तो मैं हूँ। हाँ, ये तुम हो। तो जिस रात उस बच्चे के मम्मी पापा उसे टॉर्चर करना स्टार्ट करने वाले थे, उसके पास एक आदमी आता है। वो 9 फीट लंबा होता है और पूरा पिलोज का बना होता है, और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती है। वो उसके पास आकर बैठता है और उसे बताता है कि कैसे उसका खुद का भाई उसकी जान ले लेगा। वो उससे बोलता है कि क्या ये बेहतर नहीं कि तुम खुद अपनी जान ले लो, ताकि तुम इतने साल का दर्द ना सहना पड़े। लेकिन अगर मैं बचपन में मर जाऊंगा तो फिर तो तुम कभी मुझे टॉर्चर होते हुए सुन ही नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे टॉर्चर होते हुए नहीं सुन पाओगे तो फिर तो तुम कहानियां भी नहीं लिख पाओगे, ये वाली भी नहीं। हाँ। फिर जैसे है वैसे रहने देते हैं कि मुझे तुम्हारी सारी कहानियां बहुत पसंद है।